Hello students, good morning. Today we go through the chapter number 10, that is subject, verb and agreement. In this chapter we are going to learn when we have to use a to be form of verb. Now what is to be form of verb? Is, am, are, has and have. These verb are known as is, am, are, has, have are known as to be form of verb. इस verb को क्या बोलते हैं? To be form of verb. कौन से होते हैं to be form of verb? Is, am, are, has and have. अगर आपको यू नो वेरी वेल व्हेन वी हैव टू यूज़ इज एम, आपको आई के साथ क्या यूज़ करना है? आर. सिंग ए आर ई सॉरी आप यू हैव टू यूज़ एम विथ आई एंड ए आर ई आर यू हैव टू यूज़ विथ व्हेन द सेंटेंस आर इन सिंगुलर फॉर्म एट दैट सॉरी प्लूरल फॉर्म एट दैट टाइम यू हैव टू यूज़ आर. आपको आर कब यूज़ करना है? जब भी कोई सेंटेंस प्लूरल फॉर्म में हो, मोर देन वन, एट दैट टाइम यू हैव टू यूज़ आर. हैज़ हमेशा सिंगुलर सेंटेंस में ही यूज़ होता है. ही हैज़, सी हैज़, इनके साथ क्या यूज़ होता है? सिंगुलर सेंटेंस में हैज़ यूज़ करना है आपको, और प्लूरल सेंटेंस हो तो उसमें आपको क्या यूज़ करना है? हैव. नाउ सी द वर्ब इन सेंटेंस मस्ट ऑलवेज एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर. फर्स्ट एग्जाम्पल, समर इज सुमिर, yes समर और सुमिर, something like that. Summer is a confident boy. This is a singular sentence, that's why they use here is. Now see the another sentence. Here summer is the subject of the sentence. The subject may be plural or singular. Subject क्या होता है? plural form में भी हो सकता है और singular form में भी हो सकता है. The subject may be plural or singular. In the above sentence the subject is singular. Subject यहाँ पे क्या था? हमारा singular, इसने हमने क्या यूज़ किया? is. अगर हमारा subject plural form में होता तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते? are. Second sentence example, the boys are confident of themselves. The boys here, boys more than one, एक नहीं है, more than one. This is singular, this is not in singular form. This in this sentence the subject is in plural form, so you have to use are. हमारा यहाँ पे subject क्या है? boys, boys, यानी कि एक से ज़्यादा. जब भी कोई sentence में subject हमारा singular form में नहीं हो और plural form में हो तो हमें क्या use करना है वो sentence में? are. Okay, now come to the another example. Here see, if the noun or pronoun is the subject is singular, the verb must be singular. अगर हमारा subject singular है तो हमारा verb भी क्या होगा? singular होगा. If the subject is plural, the verb must be plural. अगर हमारा subject plural form में है, more than one है, तो उस sentence में हम are यूज़ करेंगे. अगर हमारा subject singular है तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे? is. Now see the example. The student is in the auditorium. Here see student, only one student, na? Subject is in singular form, that's why we have to use here singular verb. In the second sentence, the students are in the auditorium. Here our subject is in plural form, that's why we have to use here plural verb. are. जब भी sentence हमारा subject हमारा plural form में होगा तो हम क्या use करेंगे? are. Okay, now come to the exercise A. Fill in the blanks with the correct form of the verbs given in the bracket. First one, what you have to do? देखो यहाँ पे क्या लिखा है? be, has, be, has, be. ये सारे हमारे कौन से फॉर्म के वर्ब है? इसको टू बी के फॉर्म के वर्ब बोलते हैं. विच वर्ब? अगर आपको कोई पूछे टू बी फॉर्म के वर्ब कौन से होते हैं तो इज, एम, आर, हैज़ एंड हैव. ओके, नाउ सी हमें इसमें क्या करना है? जहाँ पे भी आपको टू बी दिया है तो बी का मीन्स होता है बी फॉर्म के हमको वर्ब यूज़ करने हैं. तो बी फॉर्म के वर्ब कौन से होते हैं? इज, एम, आर, हैज़ एंड हैव. अगर सेंटेंस हमारा सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम इज यूज़ करेंगे. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे? आर. और हैज़, जहाँ पे हैज़ अगर सेंटेंस सिंगुलर है तो हम हैज़ लिखेंगे. इफ द सेंटेंस इज इन प्लूरल फॉर्म हैव, एट दैट टाइम यू हैव टू यूज़ हैव. फर्स्ट वन, Sumira and Sina dash good speakers. Here they are our subject. हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर नहीं है, प्लूरल फॉर्म में, मोर देन वन गर्ल ना. दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ हियर आर. इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? आर. सेकेंड वन, द रेफरी डैश हैज़ नॉट ब्लोन द विस्टल. विस्टल यानी कि सीटी बजाना. द रेफरी यानी कि जादू जो बता रहा है उसने क्या किया? हैज़ नॉट ब्लोन द विस्टल येट. उसने अभी तक सीटी नहीं बजाई है. अब एक ही है तो सिंगुलर है तो हमने हैज़ का क्या आएगा? हैज़. थर्ड वन, द पुलिसमैन डैश इन्वेस्टिगेटिंग द केस. हियर एम ई एन मैन, ये मैन का मीनिंग होता है मोर देन वन. अगर एम ए एन मैन होगा तो सिंगुलर, अगर एम ई एन मैन है तो वो प्लूरल फॉर्म में है. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो हम बी के यहाँ पे बी फॉर्म में कौन सा आर वर्ब यूज़ करेंगे? ए आर ई आर. थर्ड वन, आवर ऑडिटोरियम डैश वेल लिट.
अब यहाँ पे ऑडिटोरियम की बात की, एक ही ओवर ऑडिटोरियम एक ही है, तो हम क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे, बी फॉर्म का कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, इज। सेकेंड, फिफ्थ वन, द एक्रोबैट्स डैश नॉट येट परफॉर्म्ड, उसने अभी तक परफॉर्म नहीं करी है। अब यहाँ पे एक्रोबैट्स, यहाँ पे देखो ऐसे है ना, प्लूरल फॉर्म में है, तो हैज़ का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा सब वर्ब हैव, क्या होगा, हैज़ चेंज टू हैव। सिक्स्थ वन, द मैजिशियन डैश ट्राइंग हिज बेस्ट टू कन्फ्यूज द ऑडिशन विथ हिज ट्रिक, एक ही मैजिशियन की बात करी है ना हमने, तो बी का हमारा सिंगुलर फॉर्म में हमारा क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर सेंटेंस में वर्ब कौन सा वर्ब आएगा, इज। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज बी, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें इस एक्सरसाइज में भी एज यूजुअल हमको एक ही तरह ही सॉल्व करना है। फर्स्ट वन, Mihir and Nalin dash reaching here tomorrow. They are two friends. More than our here the subject is in not in singular form. Subject is in plural form. So we have to use B form of verb change to are. मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है, तो हमारा बी फॉर्म का वर्ब कौन सा यूज़ होगा, इज आएगा कि आर आएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम आर यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे आर। सेकेंड वन ऑफ द बॉयज डैश अ गुड चेस प्लेयर, एक बॉय की बात करें सिंगुलर, सो बी चेंज टू इज, बी फॉर्म में से कौन सा वर्ब आएगा इज। थर्ड वन, द पेयर ऑफ शॉर्ट्स डैश बी न्यू, दिस पेयर ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पे देखो कौन सी दिस है, टी एच आई एस दिस है, ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो हमारे सेंटेंस में भी क्या आएगा सिंगुलर इज। अ क्लास ऑफ 50 गर्ल्स डैश वेटिंग इन द लाइब्रेरी, क्लास एक ही क्लास की बात करी है ना, क्लास ऑफ 50 गर्ल्स, तो यहाँ पे बी का क्या होगा इज, हमारा क्या यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा सिंगुलर है, इसलिए क्लासेस नहीं दिया, क्या बोला यहाँ क्लास। फिफ्थ वन, अ लॉट ऑफ मनी डैश स्पेंड ऑन सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट, लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी, तो बी फॉर्म का क्या होगा सिंगुलर में इज। Sixth one, the United Kingdom, this is a one country only, UK, so you have to change it right here is. Exercise C, read the following sentence and rewrite the correct incorrect sentences in accordance with the rules of subject verb and agreement. Okay, हमें यहाँ पे जहाँ पे भी इज आर और जो दिया है बी फॉर्म का जो वर्ब है उसे हमें अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस सेट करना है, कुछ सेंटेंस राइट भी है और कुछ सेंटेंस में मिस्टेक भी है। फर्स्ट वन, द स्टेशनरी आर नॉट न्यू, स्टेशनरी यानी कि एक शॉप की बात करिए तो आर तो नहीं आएगा, हमें वहाँ पे क्या यूज़ करना होगा इज, सो आर चेंज टू इज। वी कौन सा वर्ब फॉर्म, बी फॉर्म का वर्ब में कौन सा हम यूज़ करेंगे इसमें स्टेशनरी में इज। सेकेंड वन ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉट फीलिंग वेल, दे आर टॉकिंग अबाउट वन चिल्ड्रन, दैट्स वाई वी हैव टू राइट हियर इज, आर चेंज टू इज। थर्ड वन, द लेडीज ड्रेस्ड इन साड़ी इज माई आंट्स फ्रेंड, the ladies what they wrote here not lady by lady, it's a ladies ladies, बहुत सारी लेडीज़ की बात करिए तो इज किस में चेंज हो जाएगा आर में, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट किस में है प्लूरल फॉर्म में, इफ द सब्जेक्ट इज इन प्लूरल फॉर्म यू हैव टू राइट हियर इन प्लूरल वर्ब। फोर्थ वन, एवरी विलेजर इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड, एवरी विलेजर, एवरी यानी कि हर गांव वाले, तो एक गांव यानी कि हर गांव की बात करिए ना, एवरी विलेजर इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, इज रिमेन एज इट इज। अ बुके ऑफ रोजेज आर ऑलवेज एन आइडियल गिफ्ट, बुके ऑफ रोजेज, बुके ऑफ रोजेज आर ऑलवेज एन आइडियल गिफ्ट, यानी कि ये गिफ्ट सबके लिए अच्छा रहता है, बेस्ट रहता है। इस चीज़ में बुके ऑफ रोजेज यानी कि एक बुके में एक रोज़ तो नहीं होते, बहुत सारे रोज़ होते हैं, सो आर चेंज टू सॉरी एक बुके की बात करी है ना यहाँ पे, तो लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आर, सो आर चेंज टू इज, दिस इज ए सिंगुलर सेंटेंस, सिंगुलर वो सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वन कंट्री, सो आर चेंज टू इज। द गर्ल्स सेलिंग फ्लावर एट द क्रॉसिंग आर पुअर, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है प्लूरल फॉर्म में है, एंड एट द एंड दे यूज्ड हियर प्लूरल वर्ब, सो दिस सेंटेंस इज राइट, हमें इसमें कोई करेक्शन नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 10 हियर। I will go through the chapter that is important for you in the 7th standard also. Tenses lesson is very important. So in the next lecture we go through the chapter number 11, that is model. Now what you have to do in models, continue right now. Now see what are models. Models or modal auxiliary are verbs that are placed before ordinary verb and express permission, possibility, certainty, necessity, ability and suggestion.
Modals or modular modal auxiliaries are verb that are placed before ordinary verb. When you have to place this modal auxiliary verb before ordinary verb and express permission, possibility, permission लेना, possibility में भी कोई भी काम हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्रिए certainty यानी कि हमें पता नहीं होता, necessity यानी कि ज़रूरी, ability यानी कि chances, suggestion means advice. modal auxiliary कौन से can, could, may, might, can, could, may, might, shall, should, will, would, must and ought. These all are modal auxiliaries. Now come to the features. Modals are verb. This इसको भी हम क्या बोलेंगे, verb बोलेंगे. All these modals are verb. They come before main verb. किसके बाद आता है हमेशा, main verb के बाद. They express permission, possibility, ability, necessity, certainty and suggestion. Modals do not change according to the number of person of the subject. मॉडल्स हमेशा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हम नहीं करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल, आई कैन टाइप वेरी फास्ट. दिस इज मॉडल ऑक्सिलरी कैन. और यहाँ पे हमें क्या बोला था, कब ये मॉडल ऑक्सिलरी कब आते हैं, दे केम बिफोर मेन वर्ब. वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले आएगा. सेकेंड वन, यू कैन टाइप वेरी फास्ट. ही कैन टाइप वेरी फास्ट. दे हैव नो ING और ED forms. नेगेटिव सेंटेंस विद मॉडल्स आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग नॉट और एंटी. नेगेटिव फॉर्म में जो मॉडल ऑक्सिलरी होंगे वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट और एन और एपोस्ट्रॉफी टी. अब यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, और कहाँ गया यहाँ पे वर्ब, आई कैन नॉट रन वेरी फास्ट, सो रन इज योर वर्ब. आई कांट रन वेरी फास्ट, सो रन इज योर वर्ब. Now see, when you have to use can or could, when you have to use may or might, or when you have to use will or would, must or ought to. Can and could are used to express ability or capacity. Can and could are used to express ability or capacity. Ability यानी कि हमें हमारे में काम करने की चांसेस, हमारे कितनी एबिलिटी है अपने बताते हैं ना. आई कैन डू इट, अगर हम कोई काम कर सकते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आई कैन डू इट, आई कैन फॉलो यू, यानी कि हम कर सकते हैं. सीक एंड ग्रांट परमिशन. कैन आई गो यानी कि यहाँ पे परमिशन लेना. कैन आई गो नाउ, येस यू कैन गो. दिस इज ऑल्सो ए वन टाइप ऑफ परमिशन. कुड यू सेंड द डॉक्यूमेंट्स. दिस ऑल आर शी कैन ग्रांट परमिशन, परमिशन लेना. थर्ड वन, एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. आई कैन कम टूडे, आई कुड कम टूडे. कुड कब यूज होगा, कुड इज यूज इन एक्सट्रीमली फॉर्मल सिचुएशन वाइल टाइपिंग वेरी पोलाइट. यानी कि जब भी हम पोलाइटली एकदम किसी से पूछते हैं क्या आप ये कर सकते हो, तो हमें क्या यूज़ करना है, कुड. कुड यू सेंड मी द डॉक्यूमेंट्स, पास्ट टेंस में यूज हो. विच टेंस, पास्ट टेंस. कुड इज ऑल्सो यूज व्हेन देयर इज अ वीक पॉसिबिलिटी. यानी कि हमें पूछते हैं कि क्या आप कर सकते हो, चांसेस कम होते हैं कोई भी काम के लिए, तब हमें क्या यूज़ करना है, कुड. यानी कि जिसमें हमें डाउट है. Could is also used when there is a weak possibility of something happening. Express an offer or suggestion कि you can leave your books with me. Offer भी देना, one type of. Now come to the exercise first. See first one. Fill in the blanks with can or could. In some sentences both and can and could may be used. Mother dash I have bread and butter for breakfast. Can I have bread or butter for breakfast? She said that as a little girl she could do this exercise with easy. यानी कि इतनी छोटी सी लड़की है फिर भी वो काम ये कर सकती है. could. She could do those exercise, taking a one type of permission. The driver asked, third one, the driver asked the passers by, could you please tell me the way to the station. This is a question. While asking a question something, at that time you have to use could. I am not sure but I think he can come today. Here also chances है लेकिन कम है. फिफ्थ वन, यू कैन टेक ए रिक्शा टू गो टू ऑफिस. क्या आप ऑफिस जाने के लिए रिक्शा ले सकते हो. सो कैन एंड कुड यू हैव टू यूज एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी, ग्रांट परमिशन, एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ऑफर और सजेशन. ऑफर भी दे सकते हैं हम किसी को, और सजेशन में भी हम कैन और कुड का यूज़ कर सकते हैं. नाउ कम टू मे एंड माइट. दे आर मोस्टली यूज इन फॉर्मल सिचुएशन. मे और माइट बहुत कम यूज होते हैं. सीक और एक्सप्रेस परमिशन. अगेन सीक और एक्सप्रेस परमिशन. एक्सप्रेस ए चांस और पॉसिबिलिटी. एक्सप्रेस एन ऑफर और सजेशन. मे इज ऑल्सो
might is used as the past equivalent of may. Past tense of may is might. He said that I might go in. Expresses chance or possibility. Past tense of may is might. Expresses chance or possibility. Might is used when there is a weak possibility. जो weak possibility chances बहुत कम होते हैं कोई भी काम के उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, might. Example of an offer or suggestion. You may consult my doctor for your treatment. I might visit the farm before deciding to buy each. यानी कि उसको खरीदने से पहले मैं पहले विजिट करूँगा. यहाँ पे चांसेस कम है. यानी जैसे कोई आपको पूछेगा कोई चीज़ लेना है तो हम बोलेंगे, वो हमको बोलते हैं ना कि मैं पहले सोचूंगा. तो ऐसी सिचुएशन में क्या यूज़ करेंगे, आई माइट थिंक. यानी कि माइट मतलब चांसेस कम होते, वीक पॉसिबिलिटी. मे इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस विश, होप्स एंड प्रेयर. मे का यूज़ होता है विशेज, होप्स एंड प्रेयर. अपने बोलते हैं बर्थडे में कितने पैट चूज होते हैं, बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. मीन्स वन टाइप ऑफ ब्लेसिंग. एट दैट टाइम यू हैव टू यूज मे. फर्स्ट वन, सर्कल द अप्रोप्रिएट वर्ड्स. द बेबी इज क्राइंग, इट मे और माइट बी हंग्री. तो इट मे बी हंग्री. मे माइट यू हैव टू यूज इन द वीक पॉसिबिलिटी. और इन सेकेंड वन, ही टोल्ड मी दैट ही मे और माइट गो टू द पार्टी. वीक पॉसिबिलिटी, उसने मुझे कहा था. सो माइट, विच पॉसिबिलिटी यूज माइट, वीक चांसेस कम है. ही टोल्ड मी दैट ही गो टू द पार्टी. यानी कि उसने मुझे कहा था कि वो पार्टी में जाएगा, फिक्स नहीं है ना. थर्ड वन, वेडनेसडे मे और माइट बी हॉलीडे.